زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قید بہرحال قید ہے، دنیا کی قید بھی اندوہناک یاد بن کر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے پروگرام زندگی میں قیدیوں کی زندگی کا مشاہدہ کر رہے تھے، آئیے اسی سلسلے کو گزشتہ سے پیوستہ دیکھتے ہیں۔ زندگی زندگی آج ہم زندگی کا جو پہلو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کھلی آزاد ہوا و فضا میں سانس لینا یہ ایک ایسی دولت ہے جو کہ قیدیوں کو میسر نہیں ہے۔ انسان کو جرم کی سزا جبکہ اچھے کام کی جزا ملتی ہے۔ جیل کی زندگی، قیدی کی زندگی خوفناک اور دہشت ناک حقیقتوں پر مبنی ہے۔ زندگی زندگی سرخ پہاڑوں کے بیچوں بیچ یہ مچھ جیل ہے۔ تو آپ کس جرم میں یہاں پہ؟ میرا اغوا کا کیس ہے، اغوا برائے تاوان کا کیس ہے۔ کبھی انسان کا ایک لمحہ اس کی غلطی انسان کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ بس پھر وہ ہاتھ ملتے جو ہے رہ جاتا ہے۔ غفلت کی زندگی تھی، اب رب تعالیٰ نے کرم کیا۔ کر دے کرم مولا کر دے کرم، بس میرا رب گناہ معاف کر۔ ظلم جو ہے نا یہ کسی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی طاقتور کو کسی کمزور پہ ظلم کرنا چاہیے، اور بعض وقت کمزور بھی طاقتور پہ ظلم کر لیتا ہے۔ کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم۔ جیل میں مریضوں کے علاج کے لیے اسپتال کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، ایک نظر یہ بھی دیکھیے۔ یہ ابھی ہم مچھ جیل کے ہاسپٹل میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ لیبارٹری ہے، صحیح ہے جی، یہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ میڈیکل آفیسر۔ زندگی 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 یہ داخل ہے۔ السلام علیکم، کیا ہو گیا؟ زندگی زندگی زندگی۔ اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اسلام کی خدمت میں۔ آپ ان کی عیادت کر رہے ہیں یا آپ ہی بیمار ہیں؟ ان کے لیے بیٹھے ہوئے صفائی کے نظام کیسے بنا؟ سر لاجواب، ماشاء اللہ۔ لیکن سر اس کو جو مینٹین رکھا ہوا یہ کمال ہے، لاجواب۔ یہ ہمارے میڈیکل آفیسر صاحب ہیں جی، ڈاکٹر نبی بگٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ڈیوٹی میں کس شاخ سے آپ؟ موسانی بھی ہوتے ہیں تو دیناری بھی ہوتے ہیں جی؟ رائجہ رائجہ نہیں، رائجہ نہیں میں نے سنا تھا۔ دیناری ہیں، حبیبانی ہیں، موسانی ہیں۔ موسانی ہے، باقی شاید یہ چھوٹے چھوٹے اس کے زئی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی سب کاسٹ پھر سب کاسٹ پھر دوسرے سب کاسٹ، یعنی قبیلہ پھر اس کی شاخ، پھر اس کے آگے اس کی شاخ۔ در شاخ اس طرح پھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ جو موت کی تصدیق کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں؟ بالکل، یعنی سزائے موت کا قیدی ہے تو اس کو یہ مر گیا ہے، ہاں، سزائے موت یا اینی ٹائم کوئی بھی اپنے موت سے مر سکتا ہے۔ تو وہ اچھا، ویسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ویسے مر جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی کیا ہے کہ یعنی اس کو ہے کچھ نہیں لیکن وہ شو یوں کر رہا ہے قیدی کہ بس جیسے میں مر گیا ہوں یا مرنے والا ہوں، کبھی ایسا کوئی ہوا؟ مطلب اس طرح آئے دن ہوتے ہیں مسئلے کہ وہ بیمار نہیں کہتے ہیں بیمار ہیں، مرنے کی بات تو نہیں، ویسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس میں مر رہا ہوں، اس طرح کیسز بہت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا پھر کیا علاج کرتے ہیں؟ اس کا بس فنکشنل پیشنٹ ہے، ہم لوگ بس ان کو وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کا علاج کر رہے ہیں، وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا بھی علاج چل رہا ہے۔ اسے وہ کہتے ہیں، اردو کا ایک محاورہ ہے، جی رسی جل گئی لیکن بل نہیں ٹوٹے۔ چلتا ہیں جی، رہتا ہے، تنگ کرنے کا جرم کر کے ایک تو آ گیا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ یعنی ادھر آ کے بھی چکر بازیاں کر رہے بھلا بندہ۔ جس طرح بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ پورا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہو، آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں یہاں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہاں، تو اچھا آدمی بننے کی بجائے وہ بندے کو موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، قدرت بندے کو موقع دیتی ہے،
تو آپ کو اگر موقع مل رہا ہے اچھا بننے کا, اچھا رستہ اختیار کرنے کا, کرائم چھوڑنے کا, اور اس طرح سے جو غلط کام ہیں, غلط عادتیں ہیں, بری عادتیں ہیں, یہ چھوڑنے کا موقع مل رہا ہے, تو اس کو اویل کریں اور اس کو چھوڑیں تاکہ زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے. ورنہ پھر یہاں بھی سختی ہے, اور ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ, اللہ ناراض ہوا تو آگے بھی پھر سختی ہی ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. بڑی مہربانی جناب مفتی صاحب. جیل میں قیدیوں کو بنیادی ضروریات یعنی کھانا اور پینے کا صاف پانی یہ بھی میسر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی دی جاتی ہے. کھانا کس طرح تیار ہوتا ہے, آئیے آپ کو مچھ جیل کا کچن دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی دو روٹیاں جو صاحب بتا رہے ہیں, یہ آپ جیلر بھی ہیں یہاں کے, بڑے پیارے آدمی ہیں, بڑے بااخلاق بھی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ دو بالکل پہلے میں دو کھا کچن ہے, اور ماشاء اللہ صاف ستھرا زبردست, یعنی ہائیجینک کھانا بن رہا ہے ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں آپ وقت گزر رہا ہے, وقت جو موجود ہے وہ حال ہے, دوسرا ماضی آتا ہے استقبال. پھانسی فجر میں کیوں دیتے ہیں, اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ نہ کچھ نہیں, وہ اس طرح ہے کہ ایک تو جیل بند ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے جیل بند ہے, اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ پہلے پھانسی ہو گئی, پھر اس کی ڈیڈ باڈی باہر ہو سکتا ہے وہ کہیں باہر دور کا ہو, تو اپنے دن میں پہنچ جائے جہاں پہنچنا. جیل میں قیدیوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ ہائی پروفائل, خطرناک, دہشت گرد قیدی ہوتے ہیں, لہذا ان کو بھی جیل مینول کے مطابق, قانون کے مطابق رکھا جاتا ہے. جیل میں قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے عزیز رشتہ دار آتے ہیں. مچھ جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی ملاقات کہاں اور کیسے ہوتی ہے, آئیے دیکھیے. ادھر وہ بیٹھتے ہیں, اس سائڈ سے پہلے اسی کھڑا بندی اس طرف سے بیٹھتا ہے, یہاں سے بات چیت ہوتی ہے. دیکھ بھی نہیں سکتے, بس اتنا ہے, نظر آتا ہے وہ کھول دے, پھر لائٹ ہے تو جل گیا, تو یہاں سے اس کی ملاقات ہی ہوتی ہے. اندر سے قیدی ہوتا ہے سزائے موت. سر کون کون ملاقات کر سکتے ہیں اس سے آخری ٹائم؟ ملاقات اس کے عزیز رشتے دار کرتے ہیں, ماں, باپ, بہن, بھائی, بیوی, بچے. جی, یار دوست, عزیز رشتے دار آتے ہیں, ملاقات ہمیشہ ہوتی ہے. ابھی چھپا کے ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. جی ہاں, یعنی سزائے موت کی قیدی کے لیے ملاقات یہاں جگہ ہر ایک. تین انکلوژن ہے ہمارے, اور تینوں کا یہی پوزیشن, ایک یہ ہے, ایک وہ ہے, ایک اس سائڈ ہے, اور ان کے سیلز جو ہیں وہ 20 سیلز ہیں. یہ بھی بند ہیں یا کھلے ہوئے؟ کچھ کھلے ہیں, کچھ بند ہیں. نہیں, قیدی ابھی جو یہاں اندر گھوم رہے ہیں, جی ہاں, یہ اندر گھوم رہے ہیں یا اپنے سیلز میں بند ہیں؟ سیل بھی بند ہے, کھلے بھی. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. واپس آپ کو حیدرآباد سینٹرل جیل لیے چلتے ہیں. ہم بیرک سے ریکارڈنگ مکمل کر کے واپس آفس میں آ گئے. آفس میں کیا گفتگو ہوئی, آئیے آپ بھی دیکھیے. یہ سر یہ جو بات کی جاتی ہے عمر کیا, جیسے 25 سال ہے یا 12 سال ہے, 13 سال ہے, لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدھی سزا ہوتی ہے, کہ دن الگ کاؤنٹ ہوتا ہے, رات الگ کاؤنٹ ہوتی ہے. کیا ایسے ہی؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم جو ہے وہ دن اور رات الگ الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں نا. یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, یہ ایک دن ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. بٹ یہاں پہ ایک الگ سسٹم ہے, ایک ریمیشن کا کانسیپٹ ہے جس میں معافی ہوتی ہے. مطلب وہ ہوتی ہے GCR, گڈ کنڈکٹ ریمیشن. مطلب اگر وہ ڈسپلینڈ ہے قیدی, جو بھی پرزنر ہے, تو اس کو تیسرا حصہ سال کا, مطلب 4 مہینے جو ہوتے ہیں, اس کو ہم ریمیشن دے سکتے ہیں, معافی مل سکتی ہے. تو 25 سال کی سزا ہے, وہ 25 سال پوری نہیں کرتا. اگر وہ ڈسپلین میں رہے گا تو 1/3 اس کی ہو جائے, مطلب کمی ہو جائے گی. صحیح. لیٹ سپوز 1 سال ہے تو 4 مہینے اس کی کٹ جائے گی, اور پھر اچھا اس میں دوسری جو ہے وہ ریمیشن بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ پریزیڈنٹ دیتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, 14 اگست پہ دے دی, 23 مارچ پہ, 12 مطلب وہ رب لیول پہ دے دی. سپریڈنٹ صاحب کی بھی ہوتی ہے 60 دن کی, 60 دن وہ معافی دے سکتے ہیں. IG صاحب ہمارے ہیں, وہ 90 دن دے سکتے ہیں. 120 دن آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے, CM کی طرف سے ہو سکتا ہے, ایسے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اچھا, یہ سارا مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ قیدی کا بیہیویئر کیسا ہے. صحیح. وہ ڈسپلن میں ہوگا تو اس کی ریمیشن یہ ملے گی. پھر وہ 25 سال بہت کم ہو جاتی ہے سزا, وہ پہلے ہی جو ہے وہ رہا ہو جاتا. بندہ جس نے جرم کیا ہوا ہے اگر وہ سدھر گیا ہے تو اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو اس میں گزار کے چھوڑنا اس کو. یعنی اگر وہ سدھر رہا ہے, وہ اچھے اس میں سینیریو میں آ رہا ہے, تو اس کو ایک گڈ جسچر کے طور پر اس کو سزا اس کی کم ہو جائے گی. نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا, یہ پہلی نیکی کی جزا ہے.
یعنی نیکی کر لی پھر نیکی کر لی تو یہ پہلی نیکی قبول ہو گئی, یہ اس کا آپ کو ایک صلہ مل گیا آپ نے غور نیکی کی. تو آپ نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی گناہ کیا ہے, اس کے بعد دوبارہ ایک گناہ کر رہے ہیں تو وہ پہلے گناہ کی کیا ہو رہا ہے, وہ بھی سزا ہے, سزا مل رہی ہے. اللہ ہمیں بچائے, گناہوں سے بچائے. اللہ اکبر. میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے جیل کے 2 بڑے اچھے اور ویل رینکڈ جو ہے وہ آفیسر کے ساتھ جیل کا وزٹ کیا ہے, اور اس کے باوجود میں آپ کو مطلب بتا نہیں سکتا کہ ایٹماسفیئر کی ایک الگ بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ, گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہے, سبحان اللہ. ابھی ہے جیسے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اپنے کہتے ہیں کہ لقائے خلیل شفائے علیل, ٹھیک ہے, تو یوں ہے, اس کی اپنی بات ہے. تو ایٹماسفیئر کا ایک اپنا بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور جیل کی زندگی کے اندر ہیومینٹی کا جو ایک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, کھانا پینا اس کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, بنیادی سہولیات کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن قید اٹ سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. میرا بھی سوال ہے. جی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ جیل کا ماحول دیکھا, آپ مختلف جیلوں پہ بھی گئے ہیں. جیلوں کو ایسا بنایا جائے کہ قیدی بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپنے پوری فیسلٹیز کے ساتھ رہے, اور جیسے آپ نے کہا تھا ڈپریشن کا شکار نہ بنے. تو آپ نے یہ ماحول ہماری جیل میں سینٹرل فیسلٹی جو ہے, سینٹرل پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی حیدرآباد میں, وہ کیسا پایا, اور ان انتظامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا. ہمیں تو گرینری ہے ماشاء اللہ, اور کلیننس ہے, ہائیجینک جو ہے وہ ماحول ہے, اور پھر عملہ بھی خوش اخلاق عملہ. بعض اوقات ہوتا ہے نا دہشت ناک لوگ ہوتے ہیں, تو ایسے تو الحمدللہ لوگ یہاں دیکھنے کو نہیں ملے, اللہ کی رحمت ہے. یہ آپ کے چہرے پر بھی کتنی پیاری سی اسمائل ہے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. تو سر بات یہ ہے کہ مجرم سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کی جائے, مظلوم کی بھی مدد کی جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور مظلوم کی تو مدد کریں گے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو, تو یہ اس کی بھی کیا ہے, مدد ہے. تو جرم جس نے کیا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا اگرچہ یہ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو مجرم کیا ہے وہ مانتا نہیں, تسلیم نہیں کرتا. تو جب تک تسلیم نہیں کرے گا تب تک پھر کیا ہے, دن رات سڑتا رہے گا. سر میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے ابھی جیل میں نا, یہیں پر, یعنی یہ یہاں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ ایٹماسفیئر سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ایک جیسے ہیومن بینگ سے ہے. کچھ لوگ سر وہ ہوتے ہیں جن کو تنہائی توڑ دیتی ہے, اور کچھ لوگوں کو تنہائی سٹرونگ کر دیتی ہے. یعنی ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کیا ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں بیچارے, پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ ایک ماحول میں رہ کے گھر سے دور ہیں, بیوی بچے یاد آتے ہیں, تو بندے کو ایک فیل ہوتا ہے. لیکن مجھے یوں لگا کہ وہ لوگ کہ جو یہاں پر ذکر اللہ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اچھے کام میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں, تو ان کے اوپر وہ فرسٹریشن کا وہ لیول وہ نہیں ہے جو ایک عام یوں بولیں کہ اسی جرم کے قیدی کے اندر ہے. میں آپ کو عرض کروں سر, بڑی پیاری سی بات ہے, اللہ سب کا ہے, گناہگار کا بھی وہی ہے, نیکوکار کا بھی کیا ہے وہی ہے. تو گناہگار کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹریک چینج کر کے نا اس کی طرف آ جائے, بس یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے, آگے نہیں کروں گا. آپ کو بھی ایسے قیدی دیکھ کے اچھے بھی لگتے ہوں گے, اور اسی طرح کے لوگ جو رول کو فالو کر رہے ہیں, کنڈکٹ کو فالو کر رہے ہیں, اپنے آپ کا اپنے آپ میں ریہیبلیٹیشن جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں, وہ پھر واقعی سر معاشرے میں اچھے لوگ بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھے, خود دیکھے, بلکہ میں فضائے مدینہ میں تھا تو ایک قیدی سے ہماری جو ہے نا ملاقات ہوئی. تو اس نے بتایا کہ میں جو ہے وہ قیدی ہوں, اور میری قید ختم ہوئی تو میں شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو اس کو دیکھا, ہم دیکھ کے اس کو حیران رہ گئے, یار ماشاءاللہ قید سے آیا ہے لیکن اچھا ہو کے آیا ہے. آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہوگی جب یہاں تک بھی جا رہا ہے, اچھا بن کے جا رہا ہے, اور وہی ڈھیٹ بن کے دوبارہ آ گیا تو آپ کو بھی دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے, کیا یار کدھر آ گیا.
सिलसिला कलाम को खत्म करने के बाद डेथ सेल में मौजूद सजाए मौत के कैदियों की रिकॉर्डिंग के लिए रवाना हुए। डेथ सेल की जिंदगी अल्लाह की पनाह है। मुझे सजाए मौत हो चुकी है और मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, इस तस्वुर के साथ शब रोज गुजारना एक मुश्किल काम है। आगे क्या हुआ आइए देखिए। सर ये यहाँ इसके बारे में कुछ बताएं हम। यहाँ पर जो है ना इस सजाए मौत के कैदी होते हैं। ये हाई सिक्योरिटी जोन है या सारा ये जेल सारी हाई टोटल हाई सिक्योरिटी जोन, पूरी जेल दीवार से लेके यहाँ पे। यानी ये दीवार है? नहीं नहीं, सामने वाली दीवार से लेके। कौन सी वाली? वो सामने वाली दीवार जो नजर आ रही है। अच्छा ये वाली, ठीक। यहाँ कैदी बाहर नहीं आते हैं? बाहर जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। उसमें उसके तरीक़ेकार हमने बनाया हुआ है सारा यहाँ पर कि अगर किसी का इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू का हमने लिख जाएगा। और मेन बात ये से नहीं कि वो जो है ना सारा दिन जो घूमता फिरता रहे, यानी ऐसे ये घूम रहे फिर रहे वैसे नहीं घूम रहे। सारे कैदी घूम फिर नहीं रहे। अच्छा। इसमें वो कैदी है, कोई अपनी मुलाकात के लिए आ रहा है, कोई तो कोर्ट पे गया था, कोई यानी जेल में घूमने फिरने वाला काम नहीं है। वो नहीं कि बिल्कुल ऐसे जाओ। सर ये यहाँ यानी ये फुल एंड फाइनल है बस? सारे प्रोसेस में है अभी। यानी इनकी पिटीशंस वगैरह, किसी की अपील है, किसी की जो है ना वो जेल में पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अपने मुख्तलिफ प्रोसेस में है। सर जो भी होगा जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगा। जो काम होता है इधर जेल के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम। सही। ये देखें आप, ये मरवा लग रहा है मुझे। ये मरवे का मरवा ही है ना? ये मरवा है और सामने वो देखें चमेली मोतिया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मोतिये का फूल जेल में भी क्या कर रहा है? खुशबू दे रहा है। तो एक बंदा है मोमिन को भी हर हालत में जो है ना दूसरों को नफा और फायदा ही देना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसा बनाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना टोटल डिसिप्लिन के हिसाब से आप देख रहे हैं लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस सिंधी में इसको पसार कहते हैं, इंग्लिश में जो है ना इसको मूवमेंट कहते हैं। सही। तो वो जो है ना अपनी वॉकिंग कर रहे हैं। वॉकिंग अब मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, आ जाएंगे। सजाए मौत के कैदी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सलमान भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, ज़ियारत नसीब हो गई अल्लाह। बस ये मुश्किल के वक्त में है, दुआ फरमाए कि रब्बे कायनात करम फरमाए अपने हबीब के सदके। यहाँ भी जश्न मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे थे, देखें। वाह वाह। आका करीम तो फिर सबके हैं ना? आका के सदके करम हो जाए। हमारे भी हैं। हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है, कुछ काम नहीं इससे बुरा हो कि भला हो। हाँ मैं कुर्बान जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नात बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ामिया के ताउन से बहुत ज़बरदस्त महफिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से नात ख़्वां भी तशरीफ़ लाए, उलमा कराम भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सिलसिला। आप यहाँ कब से हैं? मुझे तकरीबन 12वां 13वां साल है। अच्छा जी हाँ। आप भी ये इसमें 302 में आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाए सबके लिए। ये सारे के सारे 302 में तकरीबन बैठे हैं। आप 12 साल पहले से जाओ थे? भाई ये बड़ा भाई इसका 14 साल हो गए भाई। तो आप तीनों भाई हैं? आप ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा। हैदराबाद। आप हैदराबाद। आप भी इसी जो आपके भी इस गाय में 3 भाई थे एक टाइम पे। तो यही जेल में इंतकाल हुआ उनका? हॉस्पिटल लेके गए थे। यानी आपके भाईजान भी इधर ही थे? जी इधर। लेकिन वो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में लेके गए तो उनका इंतकाल हो गया। तकरीबन छोटे भाई को 14 साल हो गए। इनको? जी हाँ। कल तारीख है हमारी हाई कोर्ट में, दुआ करना। अल्लाह आपके हक में मिक्री फरमाया। हम आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, सुबह खबरें आती हैं आपकी, अक्सर प्रोग्राम देखते हैं। हाँ नूरी सर का प्रोग्राम भी देखा है। जिंदगी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना? हाँ शौक से देखते हैं मदनी चैनल। हाँ जी भाई। जी जी ये भी जिंदगी है ना। और मैं आपके लिए यकीन बिल्कुल। क्या आप फील कर रहे हैं? कैसे आना हुआ आपका? बस किस्मत लेकर आ जाती है, बस दुआ फरमाए। बस कुछ मामला तो हो जाते हैं, कुछ सियासी बेस पे आ जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं, कुछ ऐसे मामला तो हो जाते हैं। बस ये यहाँ पर पहुँच गए हम किसी भी तरीके से। ये शायद हो सकता है कि ऐसा अल्लाह ने किस्मत में लिखा हो। यहाँ सिलसिला है, कुरान की तालीम दे रहे हैं, कितने ही लोग नाजर यहाँ पढ़ गए मेरे हाथों से। यानी आप पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर से आया था तो मेरी नमाज भी सीधी नहीं थी, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा हुआ था, दुनिया में मगन थे।
लेकिन उस्ताद ने मेरे को कुरान शरीफ भी मेरा अभी पहला कुरान शरीफ मेरा ख़त्म हुआ 21वीं शब को, दूसरा हुआ 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा कुरान शरीफ ख़त्म। नमाज भी मेरी सीधी कराई। कई जनों को पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, कई जनों को, उस्ताद हैं हमारे पूरे वार्ड में, कई जनों को पढ़ा चुके हैं, जो पता नहीं कितने आदमी इनके हाथ से पढ़ के जा चुके हैं कुरान शरीफ, जिन्हें कलमा भी सही नहीं आता था। लेकिन ये मदनी चैनल का ये मैसेज है कि तकरीबन जेल में है ना, काम की बहुत जरूरत है यहाँ पे, कम से कम कैदियों के लिए। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने 3 साल में पहली दफा आपको देखा है यहाँ पे आते हुए। हम भी बड़ी मेहनत से आए हैं। हाँ। अल्लाह रहमत फरमाए, बहरहाल आपकी हक में रहमत फरमाए या रब्बल आलमीन, अपना फजल फरमा, करम फरमा, रहमत फरमा, इनायत फरमा, दुनिया आखिरत की कैद से रिहाई अता फरमा, आफियत अता फरमा, फरीक के मुखालिफ है या रब्बे करीम उनकी हक में भी खैर फरमा, बेहतरी फरमा, दिल को नरम फरमा या इलाहा आलमीन, या रब्बे करीम अपना फजल फरमा, अपनी इनायत फरमा, इनका बेड़ा पार लगा, इनके सदके में मौला करीम दुआएं मुझ मिस्कीन की हक में कबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ये बताएं हुजूर कि आपने कभी कोई कैदी को जैसे सजा मिलती है, जैसे डेथ पेनल्टी है, तो देखा किसी को? अल्लाह रहमत फरमाए। मेरे सामने जी 4 से 5 से 6 बंदे जो है ना, जिनको एग्जीक्यूशन हुई है। जी जी जी, सजाए मौत जिनको एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी बंदा फांसी पे लटकता हुआ देखा आपने? बिल्कुल जी, देखा है मैंने, देखा। किस तरह के लोगों के मामलात होते हैं और क्या उनके ख्यालात होते हैं? असल में बंदा कुछ भी है, अगर उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया, जब उसको यहाँ पे लेकर आते हैं तो उसको निदामत जरूर होती है। अच्छा, निदामत जरूर होती है कि हाँ बस गुनाह हो गया। नहीं तो आखिर इन लोगों के क्या तासुरात होते हैं या क्या बोलते हैं आखिर में? आखिर में जब उसकी विल ली जाती है कि भाई आपकी विल तो पहले ले लेते हैं ना, आखिरी दिनों में होती है जी, जब उसकी ब्लैक वारंट वगैरह जब इशू होता है तो उसके बाद जब उसकी बिल ली जाती है तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात बताता है कि मेरे घर वालों को ये मैसेज दे देना कि मेरे बच्चों का ख्याल रखें, मेरी बीवी का ख्याल रखें। आखिरी ख्वाहिशें मतलब क्या क्या होती हैं इनकी? ज्यादातर यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे भाइयों को कह देना कि मेरे घर वालों का ख्याल रखें और उनको जो है ना परेशानी ना हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ज्यादातर यही होती है। एक ने कहा था कि भाई मेरी आंख जो है ना वो डोनेट कर देना, ये भी सदा मौत का है। फांसी घाट लिखा है हाँ, इसी सजा मौत, सजा लटकाते हैं बंदे। नहीं, एग्जीक्यूशन वहीं पे होती है, वो उधर एग्जीक्यूशन वहीं पर होती है। और ये हमारे क्योंकि कैदी ज्यादा है तो हमने मुख्तलिफ वार्ड्स बनाए हुए। अच्छा, तो ये जो लोग होते हैं जब फांसी दी जा रही होती है तो उस वक्त वो उनके वो जो मुद्दई होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल बाहर होते हैं। ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके वापस ऑफिस आना हुआ। सर ये जो गिनती करते हैं जेल में, सिर्फ किसी ने बाहर जाना नहीं होता कैदी ने, तो इनकी गिनती क्यों करते हैं? सुबह शाम गिनती क्यों करते हैं? गिनती सर हमारे लिए इसीलिए, ये हमारा रूल है जो कानून है, कानून गिनती होगी कि कैदी कोई जो हम बैरिक में बंद करना होता है यहाँ सर्कल में, उनका टोटल रखना होता है शाम और सुबह निकालते वक्त। कोई कैदी हमारा कोई बाहर तो नहीं रह गया, कोई इसकी भी नुकसान न कर ले, कोई अपनी तरफ से यहाँ कोई की जगह कहीं वो डिफ्यूज न हो जाए, इस वजह से हम गिनती रखते हैं सुबह की और शाम की। मरहबा। हाँ, ये जो टोपी पहनी होती है उनका क्या होता है? इसको जवाबदार कहते हैं हम। इनका काम ये होता है कि हमारे पास जैसे मुलाकात रोजाना 300 से 350 तक मुलाकात आती है, तो बहुत बड़ा जेल का एरिया है, उनको लेकर आना, फिर मुलाकात पे जो नया कैदी आता है वो आप अंदर चक्कर लगा के, बहुत बड़ी जेल है, उनके अलग से रास्ते बने हुए हैं आने के और जाने के, तो उनको जो उनका जो हमारा जो तरीक़ेकार है, उनको हाथ से पकड़ के या उसको रास्ता दिखाना, उनको लेकर आना, ये उनका जिम्मेवारी होती है। तो उसको कोई बेनिफिट भी होता है जिसको टोपी जिसने लगाई होती है? नहीं, उनका बेनिफिट नहीं होता है, जैसे कोई मशक्कत में आ जाता है सजा के तौर पर, फिर हम जो उनको इस काम में लगा लेते हैं। पहले तो दौर होता था जो पत्थर कूटने का या फिर वो कोडर या फिर उसका काम चलाने का, अब वो नहीं रहा, मॉडर्न दौर है, तो फिर मशक्कत लेते हैं, तो बिठाने के बजाय इनको ये थोड़ा सा काम जो है गवर्नमेंट की तरफ से यानी जाए भाई देख के लाए बंदा कहाँ है, उसको लेकर आए। तो सर ये मुलाकाती जो आते हैं, तो ये मुलाकात का क्या तरीका कार है और क्या सजाए मौत की कैदी की मुलाकात आती है? सजाए मौत की मुलाकात भी आती है, बिल्कुल आती है। उनकी भी मुलाकात के लिए किसी के भी कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी नहीं। सजाए मौत की कैदी की मुलाकात आएगी तो वो कहाँ मिलेगा? वो भी वहीं मिलता है, हमारे पास जो शेड बना हुआ है उसका, मुलाकात का जो शेड है वहीं पर मिलेगा। हाँ, वहाँ पे इंटर काम की है सहूलत है,
सामने बंदा जो प्रिजनर है हम लेकर आते हैं, फिर मुलाकाती को बुलाते हैं, वो इंटरकॉम पर उस पे जो है वो बात कर सकता है। हर कैदी देख रहे होते हैं? हाँ देख रखते हैं, एक एल्युमिनियम का फोन पे बात होती है। सेंट्रल जेल में सर और डिस्ट्रिक्ट जेल में क्या फर्क होता है? डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल में एक तो कैपेसिटी का फर्क होता है। कैदी सेंट्रल जेल में जो होते हैं उनकी तादाद जो ज्यादा होती है और डिस्ट्रिक्ट जेल में थोड़ी तादाद कम होती है, लेकिन ज्यादातर जो रखा जाता है सेंट्रल जेल में वो कन्विक्ट प्रिजनर जो सजा वाले होते हैं, यहाँ सजा याफ्ता कैदियों को जो है वो सेंट्रल जेल में रखा जाता है। यहाँ कंडेम्ड प्रिजनर जो होते हैं सजाए मौत वाले, उनको सेंट्रल जेल में रखा जाता है। दूसरी यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के हवाले से हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल है, उसमें ट्रीटमेंट अच्छी होती है। 4 डॉक्टर रखे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जेल में भी होता है लेकिन वहाँ पर थोड़ा कम होता है। यहाँ पे ज्यादातर जो है वो अभी जो है इसलिए वजह से वो रखा जाता है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने शुक्र फरमाया। और फिर उस जगह की जानिब रवाना हुए जहां फांसी लगाई जाती है, एग्जीक्यूशन की जगह। आइए आप भी देखिए। तीसरी मर्तबा जी सर, क्या हम लोगों से लेना? तो सारा दिन जेल में सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 8 बजे निकलते हैं, क्या लेना हम लोगों से इंटरव्यू? सर आप ही के पास तो इंटरव्यू है, आप ही तो बताएंगे। तरह तरह के कैदी देखते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग देखते हैं। कभी किसी कैदी से हमदर्दी हुई आपको? ये हमदर्दी इस वास्ते है कि हमारे लिए कैदी जो भी है वो हमारे सारे भाई है, तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारा काम बड़ा बेहतरीन चल रहा है। चाय दी जा रही कैदियों को? जी चाय जा रही है। वाह, चाय जा रही है। कितने टाइम चाय मिलती है कैदियों को? जी सही, 1 कप। 1 कप चाय जी। कितने टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम, सही। सुबह मिलती है, शाम को मिलती है, सही। इस तरीके से। तो खाने वाला टाइम का क्या है? खाने का टाइम? खाने का टाइम सुबह जैसे टोटल खुलता है उस टाइम जैसा 1 पराठा 1 चाय का कप। वाह, सुबह के टाइम पे। सही। और अल्लाह की मेहरबानी से वैसे दानिश भाई, मैंने जेल की रोटी देखी, बहुत बड़ी रोटी होती है। मच जेल में जो देखी थी ना, जी जी, तो उन्होंने कहा ये 2 रोटियां मिल में हैं, ये तो 2 रोटियां तो मतलब मेरे जैसा बंदा ये 2 नहीं खा सकता। इधर खा लेते हैं वैसे? जी, इधर भी 2 रोटी है। अच्छा। और नाल सालन मिलता है उनको खाने के लिए। वाह माशा। और दोपहर को रोटी है, सही। शाम को रोटी है। वाह। बीच में बिरयानी भी पकती है इनके लिए, सही। गोश्त इनके लिए पकता है। अल्लाह की मेहरबानी, हर शय मिलती है। सही। हाँ, और एक बंदा कहता है कि यार मुझे कुछ शय नहीं मिलती, तो फिर वो तो हम घर में भी कभी कभी वो कैसे चटनी से खा लेते हैं रोटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी बात है। सही। तो अल्लाह की मेहरबानी सारा काम ओके हमारे पास। जिंदगी जिंदगी मौत की जो कैदियों के सेल्स हैं उनको दूर दूर से ही देख के आ रहे हैं। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बात हर दिन नए लाए जिंदगी। अगर कैदी ऐसे कब ये आ गया सर जी, उसको बुद्ध वाला वॉच टावर वाला शिफ्ट कर दो। सही। कुछ गलतियां सर ऐसी होती है जो बंदा जिंदगी में एक ही दफा कर सकता है। एक ही बार कर सकते हैं बस, तो फिर तमाम उम्र बैठ के पछताना। हाय हाय हाय। पछताने के अलावा कुछ सर आपने कभी किसी मौत की कैदी से कोई बातचीत गपशप कभी की है? मैं तो सुबह शाम ही से बात करता हूँ। कोई किसी का कोई ऐसी कोई स्टोरी, कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो यार ये बस ये काम ना करता तो अभी यहाँ पे ना होता? मसला इनका ये आता है भी वही है ना कि वो बर्दाश्त नहीं है ना उनमें, वो उसका रिजल्ट यहाँ तक आ गया। अगर उसमें बर्दाश्त होती तो ये रिजल्ट नहीं। हालांकि हमें पता है कि हम सब के साथ हैं और हमने चली जाना है बाहर, लेकिन खौफ है। सर इस्लामी मुल्क के भी आपस में लड़ते भी हैं? अच्छा, लड़ते भी हैं। बिल्कुल, तो पागल भी हैं, पागल हो गए। ओहो, पागल हो गए हैं? जी हाँ, पागल भी हैं, क्योंकि दिमाग काम छोड़ देता है कि भाई ये मैंने क्या किया। अल्लाह, घर का घर भी तबाह हुआ। जिंदगी जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। सो सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो फांसी के तख्ते पर आ गया जी और उसके मुद्दई ने माफ नहीं किया जी, तो मरने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। मकतूल का वर्षा अगर पटे पे आ जाए, माफ करना चाहे, हुए हैं ऐसे केसेस, माफ भी किए गए हैं।
हमारी आखिरी तक कोशिश होती है कि इनकी कंप्रोमाइज हो जाए। सही। हम मकतूल के वर्षा से भी मिल के रिक्वेस्ट करते हैं उनको, और ऐसे हुआ भी है कई बार, माफ कर भी देते हैं। कर भी देते हैं। अपने आप को तैश से बचाएं, गुस्से से बचाएं, जज्बातीपन से बचाएं। बाज़ गलतियां इंसान ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कर सकता है, तो कत्ल जैसा अकबरुल कबायर, कबीरा तरीन गुनाह, यानी आखिरत भी बर्बाद है और दुनिया में भी क्या हाल है। मैं तो आपको सच बताऊं, अल्लाह जानता है, मैं तो मेरा दिल खौफ से जो है वो कांप रहा है। अल्लाह, मुझे तो पता है कि मैंने जुर्म भी कोई नहीं किया, तो मुझे तो कोई उधर है ही नहीं ना जाने का ऑप्शन, ही चांस ही नहीं है। फांसी घाट देखा है जो जहाँ लगाते हैं, और वो इतना गहरा उसका वेल है वो भी देखा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए। अपने अंदर तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त जो है पैदा करें, और बात बात पे लड़ाई, मार कुटाई, झगड़े और फसाद, और इधर मार दिया उधर मार दिया, हमारा मारा हम भी मारेंगे, इन चीज़ों से निकल के ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। आमीन। मच जेल में हम मौजूद हैं, और यहाँ अल्लाह अकबर मुख्तलिफ चीज़ें जो है देख रहे हैं। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। आप सर हैदराबाद जेल में कब से हैं? मैं इधर तकरीबन हो गया, मेरे को कोई 30 साल के करीब हो गए। 30 years? जी। अब यहीं पर हैं आप? जी, यहाँ पर। क्या बात है। दानिश भाई, जिंदगी से मौत तक का सफर, अल्लाह, इतना सा। ये है जी, ये जी फांसी घाट जी, जहाँ सजाए मौत, ये इसकी जगह है। एक साथ 3 आदमी चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, एक साथ 3 आदमी, उनको फांसी एक वक्त में लगाई जाती जी। है। हाँ जी, बेलक टाइम पे 3 आदमियों को। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ जी 31/10 है 2017 से। 31/10/2017। जी जी, सही, ठीक है। ये लिखा हुआ, ये नाम है जिनको जी, जिनको फांसी लगी है वो लोग हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, सारा ये चार्ट बना हुआ हमारे पास। सलमान भाई, इसके अंदर कदम रख के क्या कैफियत? मैं तो कदम आप रखने की बात कर रहे हैं, मैं तो आगे नहीं जा रहा इस पे, तो पीछे ही खड़े। अल्लाह की पनाह है। ये लीवर खींचते हैं जी जी, लीवर खींचना पड़ता जी। जी, उस टाइम ड्यूटी लगती है हर किसी की, ऑफिसर की, जिसकी ड्यूटी लगाए अफसर। यहाँ उस वक्त कौन कौन होता है जब फांसी लगती है? इधर से मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, सही, जज साहब भी होते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी होते हैं, डिप्टी साहब भी होते हैं, हमारा स्टाफ होता है मौजूद इधर जब ये फांसी दी जाती है। सही जी। आपने कोई कन्विक्शन देखी? एग्जीक्यूशन मेरे सामने सही 7-8 बंदे चढ़े। अच्छा, यहीं पर जी, आखिरी ये बंदा चढ़ा है। ये भी आपने देखा है? देखा, बिल्कुल देखा। कितना टाइम लगता है वैसे तकरीबन यहाँ पर? सिर्फ 5 मिनट का भी काम को नहीं, एक झटके के अंदर ही काम हो जाता है उसको। ये झटका बहुत खतरनाक है। अच्छा सर, ये सुना है कि रस्सी टूट भी सकती है, टूट भी जाती है, तो जो गिर जाएगा वो बच जाएगा, इस नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? उस कैदी को जिसको सजा मौत सुनाई जाती है, जिसको मसाल के इधर चढ़ाना होता है, जो 1 हफ्ते का उसका टाइम होता है, उसके साथ हम वजन करते हैं उसका। सही, उसका वजन करके उतनी मिट्टी जो है वो इस पे डेली हम उसकी बर्जिश करते हैं वो रस्सी के साथ। सही, कि रस्सी किसी टाइम भी टूट नहीं जाए। सही जी। तो उसके बाद जैसे वो देखो कि उसका टाइम पूरा हो गया, उस कैदी को ले आते हैं, तरीके से ले आके उसको इधर चढ़ा देते हैं। तो कैदी खुद चल के आता है या उसको उठा के लेकर चल के आता, कैदी चल के आता, कोई ऐसा कोई नहीं है इशू। पर हम कैदी को पता भी है, भी नहीं भी जाऊंगा जबरदस्ती लेके आ जाएंगे। अगर तरीके से चल रही हो तो सबसे अच्छी बात है। तो आप क्या, लोगों के आखिरी अल्फाज क्या होते हैं जब उनको? उनसे जैसा पूछते हैं बाहर बैठ के कि भाई आपकी कोई वसीयत, कोई ऐसी कोई है, कोई आपके ज़हन में कोई बात, कोई बताओ हमारे। फिर उसके दिल में जो भी है वो कह सकता है कि भाई नहीं, लोग आखिरी लफ्ज क्या, जैसे कलमा शरीफ पढ़ते हैं जी, या जो कोई... तो फिर सही जैसे रास्ते में आते उसी टाइम दुरूद शरीफ, अल्लाह का नाम लेना, कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे उधर से निकालते हैं उसको। तो ये कितना गहरा है ये वेल? ये जी तकरीबन इधर से होएगा मेरे ख्याल की 20 फुट तो होएगा अंदाजा मेरा। सही जी। तो जब उसको उधर लटकाया जाता है, रस्सा उसको सिर्फ इधर इतना ढीला छोड़ते हैं, इतना ढीला, ताकि जैसे इधर खींचेगा तो झटके के साथ अंदर जाएगा तो ये हड्डी गर्दन की जहाँ टूट जाती है, मनका टूट जाता।
फिर डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहब उनकी नजर से करते हैं। कितनी देर तक किसके ऊपर रखते हैं बंदे को? सिर्फ 5 मिनट भी बहुत जाते हैं। 5 मिनट बाद उतार लेते हैं फिर? बिल्कुल उतार, डॉक्टर साहब बोलेगा हाँ भी उतार दो, उस टाइम उतार लेते हैं। फिर उधर से रास्ता बना हुआ हमारा नीचे आने का, फिर वहां से उतार के उसको बाहर ले आते हैं। फिर उसको उसके वर्षा के जी उनके वर्षा बाहर बैठे होते हैं, सही, फिर उनके हवाले किया जाता है। कभी ऐसा हुआ सर कि बंदा आया है फांसी के तख्ते के ऊपर और जो उसके मुद्दई वो भी यहाँ मौजूद होते हैं या नहीं होते? मौजूद होते हैं, जेल के अंदर भी हैं उन लोगों के, बाहर भी हैं, बाहर भी होते हैं, बाहर अंदर भी हैं। यानी वो लोग जिनका जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी का बेटा कत्ल किया हुआ है तो जो बाप है वो फांसी के वक्त में यहाँ पर मौजूद होगा, देख रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, उसको नहीं लेके आएंगे। उसको पता लगेगी कि आपके मुजरिम जो है वो फांसी चढ़ा दिया, जब उसकी लाश उसको परसों को हवाले की जाएगी तो फिर तो लाजमी उनको बताया जाएगा, नजर ही आ जाएगा। उस टाइम अखबार में आ जाता है, मीडिया वाले होते हैं इधर बाहर खड़े, वो उस टाइम उसकी तस्वीरें भर के। ये रिवर खींचने वाला बंदा है मौजूद है? जी मौजूद है, पर उस टाइम ड्यूटी लगती है किसी ऑफिसर की, मेरी लग सकती है, ड्यूटी साहब खड़े इनकी लग सकती है, हमारे खींचने की भी। हाँ जी अच्छा, वो मखसूस कोई नहीं होता? नहीं, किसी की ड्यूटी लग सकती है, वो हमारे अफसर जो सीनियर अफसर हैं वो किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है जी ये फांसी घाट कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आफियत अता फरमाए। और थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा आदमी को तख्तेदार तक भी लेके आ सकता है, लिहाजा अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। किसी का नाहक कत्ल करना ये ऐसा है गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना है। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर ऐसे भी होंगे कि जो इस टाइम पर भी अकड़ में होते हैं या तकब्बुर में, एरोगेंस में? जी यही तो बात है, अगर हमारे में ये गरूर, ये हमारी जो वो कहते हैं कि मैं, अगर ये हमारी खत्म हो जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से सारे रास्ते सीधे हो जाए। सही, सारे रास्ते सीधे। जो हमारी मैं है, जहाँ मेरे में गरूर ये टूट जाए ना हमारा सर, तो अल्लाह की मेहरबानी से सारे हमारे रास्ते सीधे हैं। आज 5 मिनट का गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो 5 मिनट का गुस्सा जैसे आपने अभी कहा कि 5 मिनट का गुस्सा जो अगर आप उसी टाइम उसको पी लो तो इंशाल्लाह ये इधर तक आदमी नहीं आ सकता। क्या कि ये नहीं रुक सकते। और तकरीबन मेरे 250-300 कैदी है सजाए मौत में जो हमारे पास पड़ा हुआ, ये अभी सजाए वो फांसी नहीं चढ़ रहे कैदी, बाकी वैसे अंदर सजाए मौत वाले बंदे बहुत है हमारे पास, 200-250 कैदी। फिर वैसे किस किस जुर्म पर सजाए मौत होती? एक तो 302 है कत्ल पर। जी बिल्कुल। अगवा बराए तवान पर भी मेरे ख्याल है हो जाती है, पर वो उसको इसमें कम लेके आते हैं इसमें। सही। मनशियात में भी मेरा ख्याल है कुछ केसेस हैं जिसमें हो जाती है। उसमें थी पहले, अभी नहीं कर रहे। 1-2 केस मैंने खुद देखे हैं जिसमें थी मनशियात वाले को, पर वो नहीं, उसमें नहीं बनती वो। सर कोई पैगाम जो आप मंदिर के नाजरीन को देना चाहें? बस हम तो यही नाज़रीन को पैगाम देना चाहते थे कि अल्लाह ताला सबको अपनी जगह पे खुश रखे, अपने घरों में खुश रहें, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई की खिदमत करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और नमाज पढ़ें, अल्लाह करें, रोजे रखें, ज़कात रखें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें, जितना भी हो सकता बच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। I will like to pay thanks to मौला बख्श साहब and अदनान साहब, शकील साहब और सर मुनीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी शफ़क़त से, मेहरबानी से, इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और ये सब रिकॉर्ड करने का या आपको दिखाने का, बताने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या यूँ बोलिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना और दिखाना मकसूद है कि जब आप जुर्म करते हैं तो फिर आप ये बात भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा और बिल्कुल हर सब कुछ ऐसे होता रहेगा। यूँ नहीं होगा। एक तो दिल में बंदे को कलक फील होता रहता है, बंदा बेसुकून रहता है, और फिर जब सजा भुगतनी पड़ती है तो ये आसान काम नहीं है। अल्लाह से डरना चाहिए और लोगों के हक को तरफ नहीं करना चाहिए। सर बहुत मेहरबानी सर, बहुत आप क्या शख्सियत है आपकी, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे, इस्लाम दे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। जिंदगी जिंदगी जिंदगी
اسباق ہر دن